السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ کابل پر طالبان کے قبضے کو آج چھٹا روز ہے۔ دنیا بھر سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ طالبان اگر ریفائنڈ طالبان ہیں تو انہوں نے بہرحال اپنا پالیسی بیان تو واضح کر دیا ہے، جاری بھی کر دیا ہے، لیکن اگر وہ ریفائنڈ طالبان ہیں تو ان کو خواتین کے، بچوں کے اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح کی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا بھی ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ اگر افغانستان میں ہوگی تو پیسفل سیٹلمنٹ کے تحت افغانستان آگے بڑھ سکے گا۔ ایک سیاسی وفد افغان سیاسی رہنماؤں پر مشتمل پاکستان میں موجود ہے، ان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے پریس کانفرنس میں کہ اگر ایک گروہ کی حکومت افغانستان میں ہوگی تو وہ ڈوئریبل نہیں ہوگی، دیرپا نہیں ہوگی، چونکہ اس کا تجربہ 1996 میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اب دوسری جانب بھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پاکستان میں طالبان کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خوشی دیدنی ہے لیکن بہت جلد ہے، پاکستان کو ابھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی افغان طالبان کو اس فتح پر مبارکباد دی گئی ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا چیلنجز پاکستان کے ہو سکتے ہیں، یا ادروائز افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کو داخلی خارجی کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور امریکہ اور دیگر مغربی دنیا پاکستان کو اب کے بعد کس نظر سے دیکھے گی، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں، انتہائی معتبر معزز شخصیت ہیں، سیزن ڈپلومیٹ بھی رہ چکی ہیں، 2011 سے 2013 میں پاکستان کی امریکہ میں سفیر تھیں، اور وہ پاکستان کے لیے مشکل دور تھا، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے، بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے رکھا بھی، اور ایک طرح سے پاکستان کو بحرانوں سے نکلنے میں مدد بھی فراہم کی۔ شہری رحمان صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ شہری صاحبہ بتائیے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے افغانستان میں، امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے، بطور ڈپلومیٹ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ جی شکریہ۔ دیکھیے میتلا صاحب، پہلے تو امریکہ کے اہداف ہی ان سے پوچھے کوئی ان 20 سال میں، اتنی طویل جنگ میں انہوں نے کب اپنے اہداف مستقل مزاجی سے یکسوئی کے ساتھ رکھے۔ ایک تو یہ ان کے اہداف، ان کے گول پوسٹ جو ہیں، یہ تو مشہور بات ہے، ہر 2-3 سال بدلتے تھے۔ کبھی یہ فائٹ کرنا چاہتے تھے، کبھی ٹاک اینڈ فائٹ کرنا چاہتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو 2012 میں کہتے تھے کہ دیکھیے جب مذاکرات آپ نے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا مکمل یقین تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہوگا، عسکری حل نہیں ہوگا، یہ کمپلیکس سوسائٹیز ہیں، ٹرائبل ہیں، اور جمہوری سوسائٹیز بھی، ماڈرن سوسائٹیز بھی میں کوئی عسکری حل تو ہوتا نہیں ہے۔ اور سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں تو 3 برطانوی ایمپائر اپنے عروج پہ تھا، لیکن ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا، 3 جنگیں وہ ہارے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اب یہ بھی جنگ دیکھ لیں تو سوویت یونین کو دیکھ لیں تو قبرستان تو ہے یہ امپیریلزم کا۔ تو یہ باتیں ان سے کی گئی تھیں بار بار۔ 2012 میں ریگولرلی ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھیے افغانستان کے سفیر بھی ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو مذاکرات کی میز پر اس وقت لائیں جب توازن، بیٹل فیلڈ توازن جو ہوتا ہے، پاور جب بیٹل فیلڈ پہ بیلنس میں ہوتا ہے، کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی 40 سے زیادہ مطلب ممالک، نیٹو کے، آئی ایس ایف کے، اپنے پورے اثر وسوخ، زور، وسائل سب کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور فل آکیوپیشن تھا۔ تو میں نے کہا یہ وقت ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ لڑنے میں پیچھے ہٹتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو دس از دا ٹائم جب آپ کی قوت بیٹل فیلڈ پر توازن میں ہو۔ تب انہوں نے نہیں بات، نہیں ٹاک اینڈ فائٹ کرتے کرتے آپ نے دیکھا زلمے خلیلزاد نے ایک دم ان سے بالکل بائی لیٹرل سب کو باہر چھوڑ کے اپنا اگریمنٹ کر لیا، جس کو میں مستقل ہر میڈیا پہ کہتی رہی، یہ ایگزٹ اگریمنٹ ہے جی، یہ کبھی پیس اگریمنٹ نہیں تھا، وہ امریکہ کا انخلا کا معاہدہ تھا۔
اور میں نے تب بھی کہا تھا، تب کسی نے سنا نہیں. ٹویٹر پہ آپ کھول کے دیکھ لیجیے کتنی دفعہ میں نے کہا ان 2 سال میں. شہری صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں یہ ڈیلیبریٹ ایگزٹ تھا اور یہ کسی تھیری کے تحت کیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں کنسپیرسی تھیوریز میں یقین نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اپنی باعزت طریقے سے وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ دائرہ تنگ ہوتے جا رہا تھا. طالبان کے پاس قوت نظر آ رہی تھی، سٹینگ پاور تھا. وہ افغانستان میں جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی ایک شناخت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ کسی بھی کولونیل پاور کو نہیں پسند کرتے اپنے ملک میں، یعنی وہ شکست دیتے ہیں. تو یہ وہ ریزسٹنس والی فوج بھی نظر آتی تھی لوگوں میں، جو افغان نیشنل آرمی کو سپورٹ بھی کرتے تھے. ان کو بھی یہ تھوڑا سا کھٹکتا تھا کہ یہ ساری باتیں ہیں. تو ان کے ہاتھ میں سب کو پتا ہے، ان کے ہاتھ میں ٹائم تھا، ان کا کلاک تھا، یہ ساری بات ہو گئی. لیکن امریکہ کا یہ پلان تو تھا کہ وہ باعزت نکلے. اور پھر انہوں نے دیکھیے کس طرح کہا کہ ہم سب کو ایک انہوں نے مذاکرات کا ایک بالکل طے شدہ کنسٹرکٹیو نیریٹو بنا کے رکھا. میں نہیں کہہ رہی کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کیوس میں بالکل ختم ہو جائے، لیکن وہ ضرور بے شک چاہ رہے ہوں گے کہ مذاکرات کی میز پہ ایک انکلوسیو سیٹلمنٹ بن جائے، اور انہوں نے وہاں جو انویسٹمنٹس کیے ہیں وہ تباہ نہ ہو جائیں. سول سوسائٹی میں، ایجوکیشن میں، خواتین میں، تو وہ تباہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اگریمنٹ کیا، وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ طالبان حاوی ہوں گے. ساری شرائط انہوں نے منوا لی. بالکل ٹھیک ہے. شہری صاحبہ، پاکستان میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں کچھ سیلیبریشن کی بات ہے؟ جی، میں نہیں سمجھتی سیلیبریشن کی کوئی بات ہے. اور ہماری پارٹی نے تو اس پر سی بھی کی، تشویش کا بھی اظہار کیا کہ ہم ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھیں. طالبان جو نئے آئے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، بھئی وہ بھی افغانستان کے لوگ ہیں، لیکن ان کا رویہ، ان کا آن گراؤنڈ گورننس وغیرہ یہ سب دیکھ لیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے 10 سال سے اسٹریٹجک ڈیپتھ سے الگ کیا تھا پاکستان کو، جو ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا کرنا انٹرنیشنلی بھی، اور بہت مشکل ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کا دفاع بھی کریں. اور کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ان کے دونوں طرف ایسے بالکل جسے کہتے ہیں دشمن ممالک بیٹھے رہیں. تو افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا بہت ہمارے لیے موضوع بھی تھا اور مقصود بھی. اور دوسری بات یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی گورننس کا کیا ریکارڈ ہوگا نا. بالکل صحیح، رائٹ، بالکل صحیح ہے. شہری صاحبہ، یہ بتائیے کہ پاکستان کو اب داخلی اور بیرونی سطح پر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی، داخلی اور بیرونی سطح پر تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں ایک مشکل اور خطرناک دوراہا ہے آپ کے لیے. جدھر کوشش ہوگی کہ جدھر بھی طالبان ادھر ادھر انہوں نے پیر رکھا یا کوئی اپنی پرانی حرکتوں پر آئے یا پرانی جو رویے تھے ان کے، جو دیکھیں اس وقت تو ان کے اسپوکسمین بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کابل میں جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، بہت ہی کیئرفل بات کی جا رہی ہے. اور کیونکہ وہ اپنی لیجٹمیسی منوانا چاہتے ہیں. امارات کو ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے جو فیڈرل ریزرو میں پڑے ہیں. ان کا جو فارمل پیسہ ہے، انفارمل پیسہ تو بہت پھر رہا ہے، لیکن وہ انفلیشن اس سے نہیں کنٹرول ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، رائٹ. تو انہوں نے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی تسلیم کر لیا جائے ان کو، اور امریکہ کا تسلیم کرنا بہت ان کے لیے اہمیت کا متحمل ہے. باقی ممالک تو پھر سوچیں گے بھی. کوئی ریجنل کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی بان یا جنیوا کچھ نہیں ہوا جس میں ذمہ داری شیئر ہوتی. تو سب میں سمجھتی ہوں سارا ملبہ غلط ہو صحیح ہو پاکستان پہ ڈال دیا جائے گا کہ دیکھیے آپ سنبھالیں، یہ آپ نے بروکر کیے. تو پاکستان کو بہت ہی میں سمجھتی ہوں شاطر اپنی ڈپلومیسی رکھنی پڑے گی اور اپنے بیسٹ لوگ اس پر ڈالنے پڑیں گے اس مسئلے پر. اور اپنے جو انٹلیکچول اور سوشل وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا. اپنے میڈیا کو بھی آپ بجائے دباؤ کہ آپ کھلا رکھیں تو ان کی کریڈیبلٹی اور ہوگی. یہ ساری باتیں
हैं जी। बिल्कुल सही। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से बात हो रही है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने अमारात इस्लामी के क़याम का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब चीन ये कह रहे हैं कि आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान पर दबाव नहीं डालना चाहिए बल्कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मदद फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तान को कब तस्लीम करना चाहिए? अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी के साथ जाए या चीन जिस तरह से कह रहे हैं कि चीन ने तो एक तरह से अपने पत्ते शो कर दिए, या चीन के साथ जाया जाए? देखिए, चीन जो है वो पहल कर भी सकता है क्योंकि उनका वहाँ कोई बैगेज नहीं है। आप देख रहे हैं उनकी कोई सियासी स्ट्रेटेजिक बैगेज नहीं है। वो उनकी एक माइंस में इन्वेस्टमेंट है और एक और प्रोजेक्ट में जो किसी भी वक्त वो जब चाहे ज़्यादा वहाँ खाना जंगी अगर खुदा न खास्ता हो या अस्करी सिचुएशन ऐसी हो जाए वो हटा भी सकते हैं। तो उनके स्टेक्स अमन में हैं, पाकिस्तान के भी स्टेक्स अमन में हैं। मैं समझती हूँ रूस के भी यही हैं। और इस सूरत हाल में तुर्की देख लें, ईरान देख लें, हम सब सारे चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर जुकाम होता है तो पूरे पाकिस्तान में चीख दर चीख आती है और उसके असरात यहाँ फील होते हैं। टीटीपी के भी मसले हैं, दैश के भी मसले हैं जो नीचे सदर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं लगते हैं। तो वो टीटीपी अमेरिका को तो नहीं अटैक करेगी, वो तो तयशुदा बात है। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर अपनी सारी तोपें मबजूल करेगी ना, और वहाँ लगभग 6,000 से ज़्यादा वहाँ लोग हैं और फिर फ़कीर मोहम्मद जैसे लोग जेलों से निकाल दिए गए हैं। वहाँ उनके भी सारे महसूद बरादरी टीटीपी वाले जो महसूद हैं उनसे बड़े गहरे रिश्ते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही देखिए मुश्किल हालात हैं और जितना हम इस बात को, जिसे मैंने कहा ना, बर्डन शेयरिंग जितनी हम कर सकते हैं, सबके साथ जिम्मेदारी ले सकते हैं और जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं, वो बेहतर है। ये बजाय इसके कि पाकिस्तान को जी आपने अभी टीटीपी के हवाले से बात की, बहुत अहम बात है। टीटीपी के ने मुबारकबाद भी दी है, एक तो वहाँ अफगानिस्तान में, दूसरा एक पॉलिटिकल इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म की भी बात हो रही है कि जी सियासी इस्लाम के एक्सपैंड करने के हवाले से बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारे अफराद पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो कमिंग डेज में ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान को अफगान तालिबान से क्या मुतालबा सामने रखना चाहिए? जी देखिए, हमें तो झिझकना नहीं चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि ये एक अहम बात की जा रही है। लेकिन दोहा अग्रीमेंट भी सिर्फ तालिबान की बात करता है और शायद अलकायदा की। बाकी जो एफिलिएट्स हैं, जो इतने ग्रुप्स हैं वहाँ, चाहे वो चेचन हो या उज़्बेक हो, उज़्बेक नहीं वीगर हो, जो भी वहाँ एक पूरा जैसे अल्फ़ाबेट सूप बना हुआ है ऑफ ग्रुप्स, चाहे वो छोटे हों। और फिलहाल दैश और जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है उसको तो अमेरिकन बॉम्बिंग ने तितर बितर किया हुआ है, लेकिन उनको वापस रीग्रुप होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो ज़ाहिर है मुल्क में इस तरह की सूरत हाल बन सकती है जो दूसरे ममालिक के लिए बड़ी तशवीशनाक होती है। तो ये एक मसला बहुत बड़ा बन सकता है और पाकिस्तान में, और देखिए हमें भी देखना पड़ेगा ना कि इनका किस तरफ ये एक्चुअल जब थोड़ा मुस्तहकम हो जाए काबुल में, किस तरफ ये ऊँट करवट लिया है और ये इनकी असल पॉलिसीज क्या हैं ख़वातीन के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह पॉलिसी दी है और किसी पार्टी ने नहीं दी है। आपने नोटिस किया होगा, हमने तशवीश का भी इजहार किया। मैंने कहा और हम सिचुएशन को देख रहे हैं, इवॉल्विंग सिचुएशन को बड़ी दिलचस्पी और तशवीश से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके असरात ना हो और मुल्क अफगानिस्तान में भी इंसानी हुकूक और जमहूरियत और दूसरे जिन कदरों पर हम इतना तकीद करते हैं वहाँ भी अगर उस पर ऑब्जर्व हो, ठीक है, वो सॉवरेन हो। शहरी रहमान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका और अमेरिका की अवाम किस तरह से अफगानिस्तान की शिकस्त को ले रही है और क्या बाइडन की पोजीशन कमजोर हुई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई है। 20 साल अफगानिस्तान से इनकलाबी अमेरिकी फोर्सेस ने कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई 5200 के करीब जो ऑपरेटिव्स हैं अमेरिका के, वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, फौजी मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि बेसिकली वो अमेरिकी शहरियों की एवैक्यूएशन के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये भी बाइडन साहब कह रहे हैं कि शायद 11 सितंबर के बाद भी वो रह सकते हैं। अमेरिकी अवाम इस तमाम एग्जिट को किस तरह से देख रही है, शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। और एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अशरफ गनी को कभी भी ट्रस्ट नहीं किया है, वो हमेशा से करप्ट थे और उनका बड़ा लेविश किस्म का लाइफस्टाइल था। और फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है कि जो अमरीकी सेनेटर्स थे वो हमेशा से प्रेसिडेंट अशरफ गनी की पॉकेट में थे। ये एक तरह से इल्ज़ाम भी है कि शायद अमरीकी सेनेटर्स को भी अशरफ गनी पैसा दे रहे थे। ओवरऑल हम इस इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मारूफ अमरीकी स्कॉलर तज्जियाकार मौजूद हैं, आदिल नजम साहब। आदिल नजम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका में क्या तासुर है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है? देखिए, अमेरिका में दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो सख्ता है, एक तरफ तो सोग है, एक तरफ तो हैरानी है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हैरानी इस पे नहीं है कि तालिबान आ गए, ये तो तय था जब ट्रंप साहब ने और ज़ालिम खलीलज़ाद साहब ने डील की थी कतर में, तो वो तालिबान के साथ ही की थी ना, तो एक तरह से उन्होंने पकड़ा दिया था प्लेट पे, तो वो तय था। लेकिन जिस तरीके से वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा, और वहाँ की सियासत का, वहाँ की फौज का, वहाँ की गवर्नेंस का, वहाँ की सोसाइटी का, जिस तेजी से वो सब कुछ एकदम उठा करके गिर गया, उस पे एक सख्ता और हैरानी तारी है एक तरफ। दूसरी तरफ बहुत सारा अमेरिका ऐसा भी है जो अपने इस वक्त इतने मसाइल में है कि तकरीबन ये खबर ही नहीं बनती। अगर आप यहाँ की लोकल खबरें सुनने शुरू करें तो उसमें ये दबी भी होती है नीचे, क्योंकि उनके अपने इस वक्त अमेरिका जो है वो एक बिखरा हुआ मुल्क है, एक तरह से टूटी हुई पॉलिटी है, जो ट्रंप साहब के दौर में खुसूसन जो है ज़्यादा बिखर गया। और अभी भी उसके जो मसाइल हैं, चाहे वो कोविड के हों, चाहे वो इकॉनमी के हों, चाहे वो सियासत के हों, तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आपको कन्फ्यूजन नज़र आती है। इस वक्त ये कहना कि अमेरिका क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है, वो बेसिकली सिर्फ क्या सराही होती है, क्योंकि अमेरिका एक नहीं है, इस वक्त कई है। बाइडन साहब कुछ कह रहे हैं, ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, बाइडन साहब की अपनी हुकूमत में जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ कह रही है, CIA कहती है कि नहीं जी हमारा कसूर नहीं था, बाइडन साहब कहते हैं मुझे तो यार किसी ने बताया ही नहीं। आदिल साहब, वैसे अमरीकी अवाम बड़ी एग्रेसिव है, ताकत को बहुत पसंद करती है, तो इस बात पर गुस्सा कहीं ना कहीं तो होगा कि अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। बहुत बड़ा गुस्सा है, दुख है, हैरानी है, क्योंकि ये देखें, पसंद करे या ना करे, एक यकीन ये अपने आप को दिला चुके हैं एक एज अ मेजर पावर कि हमारे पास ना सिर्फ दौलत है, हमारे पास ना सिर्फ मिलिट्री ताकत है, हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है कि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं। जिस तरह तालिबान भी ये सोचते हैं ना कि एक उनकी वो जब गिरता है तो देन आप बड़ी अंदर से आप पे जो है सवाल अपने बारे में उठते हैं कि यार ये फिर हम किस किस्म की सुपर पावर है। तो वो तो यकीनन जरूर है, और वो आप देखेंगे कि अमेरिकन की सियासत पे ये जो अफगानिस्तान की जिस तरह से उनकी वो उसको रिट्रीट कहें या वो उसको डिफीट कहें या वो उसको जो भी कहें, वो उसका साया उसी तरह है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वियतनाम का था। देखें ना, जब आप सुपर पावर होते हैं तो आपके पास क्या होता है, आप क्यों सुपर पावर बनते हैं ना, हम कहते हैं कोई बड़ी पावर है, कोई बड़ी कुव्वत है, वो क्या कुव्वत होती है, उस पर या दौलत की कुव्वत होती है, फौज की कुव्वत होती है, और नॉलेज या इल्म की कुव्वत होती है। 19 साल अमेरिका ने ये तीनों चीजें जो हैं पानी की लिहाज से बहा दी अफगानिस्तान में, एक नई सोसाइटी बनाने में। तो ये फेलियर ये नहीं है कि काबुल चला गया, अभी तो देखेंगे कि तालिबान क्या करते हैं। ठीक है, वो आगे शिकस्त अमेरिका की होगी, लेकिन जीत पता नहीं किसकी होगी। लेकिन बाइडन की ओवरऑल पोजीशन वीक हुई है, चूंकि अब तो उनकी इंपीचमेंट के हवाले से भी बात और डिबेट हो रही है। नहीं, आई डोंट थिंक इसमें इंपीचमेंट किसकी आप नहीं, बाइडन वीक हुए, ओवरऑल उनकी सियासी साख और पोजीशन कमजोर हुई है। हाँ, पोजीशन जरूर नहीं, आई डोंट थिंक इंपीचमेंट की बात है कि देखिए ट्रंप साहब तो नहीं, डिबेट हो रही है इंपीचमेंट की, साइडलाइन होने से आई डोंट थिंक इंपीचमेंट वगैरह पे आएगी। लेकिन बाइडन साहब, देखिए बाइडन साहब ने एक तरह से बड़े साबित कदम भी रहे, वो अड़ गए कि यार मैं तो जा रहा हूं अफगानिस्तान जाने, अफगानी जाने, हालांकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। एक उसकी शायद वजह यह है कि उनको पता है कि वन टर्म प्रेसिडेंट, उनकी उम्र ऐसी है कि उनको पता है कि मैंने दूसरी बार तो लड़ना नहीं,
सो इन अ वे उन्होंने कहा यार ये 19 साल से मैं लगा हुआ हूं इस पे, आज जाऊं कल जाऊं, जब भी जाऊंगा नुकसान तो होगा, तो मैं खुद ही ये कर देता हूं। आई थिंक उनकी उनकी पार्टली थिंकिंग ये है कि कड़वा घूट, बल्कि बहुत ही कड़वा घूट जो पीना है, किसी ने तो पीना है। आई एम बेटर प्लेस टू डू इट क्योंकि आई एम अ वन टर्म प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक ये वहां पहुंचेगी, क्योंकि अमेरिकन सियासत की बिल्कुल सही, प्रायोरिटीज राइट, इस वक्त इतनी गॉट इट। ये कहीं पर डिबेट हो रही है अमेरिका में कि ये शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी फेलियर है कि उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि इस तरह से और इतनी जल्दी फॉल ऑफ काबुल हो जाएगा। जी, वो भी फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत बात आ रही है, और पिछले 3-4 साल से आ रही है। देखें, जिस जो एक सो कॉल्ड अफगानिस्तान पेपर्स जब रिलीज किए थे वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें भी यही था कि अफगानिस्तान के बारे में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक रोजी पिक्चर दे रही है। जहां तक गनी साहब की भी बातें हैं, ये देखें, अब ये सारे कह रहे हैं, ये बातें कई अरसे से अफगानिस्तान में भी, जो भी अफगानिस्तान देख रहा था, अमेरिका देख रहा था कि उनका स्टाइल जो है बड़ा डिक्टेटोरियल है। करप्शन का तो उन पे अमूमन नहीं आता था, लेकिन वो उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो किसी से बात नहीं करते, वो मिलते नहीं हैं, वो अलूफ हैं, उनकी अपनी हुकूमत उनके साथ नहीं है। और वो हमने देखा एक तरह से तालिबान की मदद इस बात से भी हुई कि गनी साहब खुद इतने इनफेक्टिव और अनपॉपुलर हुक्मरान थे कि उससे और दरारें पड़ गई। बिल्कुल तो सही कई है। ऐसी बातें जो कई पहले भी पता थी, अब जो है वो देखें तू मैं भी शुरू हो गई ना। इंटेलिजेंस कहती है नहीं जी हमने तो बताया था, बाइडेन ने सुना नहीं। बाइडेन कहता है यार मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो जैसी सियासत हमारी यहाँ होती है वैसी वहां भी हो रही है। तो ये अशरफ गनी के हवाले से आपने बात की, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की है कि एक तो अमरीकी सेनेटर्स उनकी पॉकेट में थे और वो करप्ट भी थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमरीकी सेनेटर्स को भी अशरफ गनी पैसा दे रहे थे। आई डोंट थिंक सो। वैसे भी ट्रंप साहब की बातों पे ज्यादा यकीन भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें ट्रंप पे करना ही पड़ा यकीन, तो फिर तो आई डोंट थिंक ये कि पैसा देना वाली बात है। पैसा तो अमेरिका गनी साहब को दे रहा था ना। पॉकेट में होने का मकसद ये है कि वो आइडियोलॉजिकली उनके सपोर्टर थे, दैट विच इज ट्रू। कि गनी साहब जो थे, क्योंकि वो अमेरिका में रहे भी, ही वाज क्लियरली द चॉइस ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। तो आई थिंक, मेरे ख्याल में जहां तक मैंने सुना है, ट्रंप साहब ने कोई बाज़ाब्ता तो ऐसे नहीं कहा कि जी पैसा कोई एक्सचेंज हुआ है टू द सेनेटर्स। गनी साहब के करप्शन नहीं, उन्होंने सिर्फ वो पॉकेट के हवाले से बात की है कि उनकी पॉकेट में थे। पॉकेट का मतलब ये है कि जी आइडियोलॉजिकली जो है वो उनके करीब थे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आपने बात की कि अशरफ गनी साहब सुनते नहीं थे। बाइडन साहब ने भी इसी तरह की बात की कि उनको हमने कहा कि मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ। तो फिर अमरीकी सदर का या अमरीका का अशरफ गनी पर इतना कम इन्फ्लुएंस था? अब तो यही नजर आ रहा है। देखिए, हुब्रिस भी है ना, ह्यूब्रिस भी है। अमेरिका ने जब पहले कारजाई साहब को अपॉइंट किया, फिर गनी साहब को किया, तो ये सोच लिया कि अच्छा यार ये तो हमारा बंदा है, मैं कहूंगा तो मान लेगा। लेकिन जब कतर में गुफ्तगू हुई तो गनी साहब उसमें मौजूद ही नहीं थे। हर एक चीखता रहा कि यार तुम डायरेक्ट तालिबान से बात कर रहे हो, एक फरीक जो है वो काबुल की गवर्नमेंट है, और एक तरह से मेरे ख्याल में जो सबसे बड़े अगर कोई इसमें हैं जिस पे आप कसूर डाल सकते हैं, वो तो जालिम खलीलजाद साहब है। बिल्कुल सही, राइट। कि उन्होंने गनी साहब की गवर्नमेंट को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था इस खुशफहमी में कि यार ये तो हमारा बंदा है ना, जब हम कहेंगे तो मान लेगा। लेकिन आपने गनी साहब के साथ भी देखा, और उससे पहले कारजाई साहब के साथ भी देखा। आपको याद है कारजाई साहब भी अपने आखिर में अमेरिका की बात नहीं सुनते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पास टाइम कम है। आदिल नजम साहब, एक ब्रीफ सा कमेंट आपसे रिक्वायर्ड है। अगर अमेरिका पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला नहीं होता तो अमेरिकी अवाम समझेगी कि अमेरिका अफगानिस्तान में सुरखरू हो गया। सुरखरू तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन मेरे ख्याल में एक रिलीफ होगी, और एक तरह से एक नया नैरेटिव बन जाएगा कि यार ये जंग थी गलत, अच्छा किया हम इससे निकल आए। लेकिन सुरखरू होने का ये मतलब कि हम कि अमेरिका यहाँ कहे कि नहीं यार ये तो हम जीत गए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। आदिल नजम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफीर मंसूर खान साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में एम्बेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। यूएन का मिशन हो या गैर मुल्की हो, उन सबको वीज़े भी फराहम कर रही है और तमाम एम्बेसीज बंद हो गई हैं। 2-4 एम्बेसीज जो अफगानिस्तान में बंद नहीं हुई हैं उनमें से पाकिस्तान की भी एक एम्बेसी है और मंसूर खान साहब पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर हैं। इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़े सीजनड डिप्लोमेट हैं और बहुत अच्छी सिफारतकारी भी हमें करते नज़र आते हैं। मंसूर खान साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ पाकिस्तानी अभी तक अफगानिस्तान में स्ट्रैंडेड हैं। मुझे बताइए उनकी तादाद कितनी है और उनकी इवैक्यूएशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखें, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडेड हैं उनमें से अब मैक्सिमम लोग जा चुके हैं। तकरीबन 250-300 के करीब हमने पाकिस्तानियों को भेज दिया है। इसमें से बाय एयर भी लोगों को भेजा है और कुछ लोगों को बाय रोड भी भेजा है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी नहीं हैं, बहुत थोड़े से हैं, कुछ स्ट्रैंडेड नहीं हैं, वो लोग हैं जो अभी फिलहाल फौरी तौर पे नहीं जाना चाहते, मे बी के चंद दिन बाद जाना चाहें। कुछ जर्नलिस्ट भी हैं उसमें, तो वो जब जाएंगे। और मजीद जर्नलिस्ट भी कुछ आए हैं आज, जो कि यहाँ पे उनको हमने फैसिलिटेट किया है। हालांकि कोई वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने उनको फिर भी यहाँ पे आने में फैसिलिटेट किया ताकि वो यहाँ से अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छी कवरेज मुहैया कर सकें अफगानिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी जब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेन नेशनल्स और अफगान्स काफ़ी तादाद में हैं जो कि चाहते हैं कि इस वक्त वो पाकिस्तान चले जाएं। और फ्लाइट्स का मसला है और कनेक्टिविटी का मसला है। बिल्कुल ठीक हो गया। मंसूर साहब, अब अफगानिस्तान में तालिबान आ भी चुके हैं, उनकी डोमिनेंस नज़र भी आ रही है, लेकिन दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है हुकूक निस्वा और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से। पाकिस्तान ने भी तालिबान को कन्वे किया है कि इस तरह की रिजर्वेशंस या इस तरह के पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं। जी देखिए, जो पीस प्रोसेस चल रहा है, तकरीबन इसमें 2 साल से एंगेजमेंट चल रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। ट्रोइका प्लस के जो 4 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये अफगान तालिबान के साथ और दीगर अफगान लीडरान के साथ एंगेज रहे हैं। इसमें बड़ी क्लियरली बात होती रही है, जिसमें ये तमाम अफगान साइड्स ये बात का इजहार करती रही हैं, जिसमें तालिबान भी शामिल हैं, कि जो अफगानिस्तान में आइंदा हुकूमत है वो सियासी मुफाहमत के ज़रिए होनी चाहिए, उसमें तमाम तबक़ात की शमूलियत होनी चाहिए और ये कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे विमेन राइट्स की। तो हमें उम्मीद है, दुनिया की ये उम्मीद है कि जो भी निज़ाम अब आएगा वो इंक्लूसिव होगा और उसमें ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट की जाएगी। बिल्कुल सही है। ये इंक्लूसिव सेटलमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर भी सियासी वफ्द मौजूद है अफगान सियासी रहनुमाओं का, तो पाकिस्तान इसको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है? एक और दूसरा इसका जुज़ है कि जो यहाँ पर सियासी रहनुमा है वो भी पॉलिटिकल सेटलमेंट का हिस्सा होंगे या इंक्लूसिव गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे? देखिए, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में पहले लेवल पे तो बातचीत चल रही है अफगान तालिबान और जो दीगर अफगान लीडरान हैं, जिसमें अफगान तालिबान के रहनुमा अनस हक्कानी साहब अहम रहनुमा हैं। उनकी मुलाकातें हुई साबका सदर हामिद करज़ई से, डॉक्टर अब्दुल्ला से और गुलबदीन हिकमतयार साहब से। दूसरे लेवल पे पाकिस्तान की एंगेजमेंट है। पाकिस्तान एक हमसाया होने के नाते से भी फैसिलिटेट कर रहा है इस पीस प्रोसेस को, कि अफगान तालिबान और दीगर अफगान लीडरान, जिसमें से आपने सही कहा कि उसमें से कुछ लीडरान तो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, कि एक इंक्लूसिव सेटलमेंट के ऊपर इनके दरमियान एक हम आहंगी पैदा की जाए, एक एग्रीमेंट पैदा किया जाए, अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। और तीसरे लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पे ट्रोइका प्लस जो है, वो इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी दोहा में हमारी मीटिंग हुई थी ट्रोइका प्लस में 4 कंट्रीज की, और हम अब देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में भी मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे इन तमाम अफगान पार्टियों को या साइड्स को कि वो एक अब देरपा अमन की तरफ लेकर जाएं अफगानिस्तान। नई हुकूमत के क़याम के लिए पाकिस्तान में भी मुज़ाकराती अमल जारी है, तालिबान का इस हवाले से पाकिस्तान के साथ राबिता है। मुज़ाकराती अमल जो है वो तो या दोहा में रहा है, और अब चूंकि
سب کچھ کابل، طالبان کے کابل میں آنے کے بعد اب زیادہ تر ایکٹیویٹی کابل میں شفٹ ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے مذاکراتی عمل تو کابل میں ہوگا یا کچھ اس کا پارٹ دوحہ میں ہوگا، یہ یہیں پہ ہونا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک صرف فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ سیاسی قائدین، افغانستان کے سیاسی قائدین سے رابطہ، یہ تو ہمارے لیے ہمارا رابطہ رہا ہے تمام سیاسی قائدین سے۔ افغان طالبان کے ڈیلیگیشن بھی ہم نے انوائٹ کیے، انہوں نے وزٹ کیا پاکستان چند ماہ قبل۔ یہ جو افغان دوسرے لیڈران کا ڈیلیگیشن ہے، یہ بھی ہم نے انوائٹ کیا اور ان سے بات چیت جاری ہے۔ لیکن جو مذاکرات ہیں طالبان اور افغان لیڈروں کے درمیان، دوسرے افغان لیڈروں کے درمیان، وہ یا کابل میں ہوں گے یا پھر وہ دوحہ میں ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب تک عبوری حکومت قیام پذیر ہو جائے گی اور عمل میں آ جائے گی؟ یہ اب اس پہ ابھی تک جو ہے پیش رفت گزشتہ چند دن میں تو یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ایک حکومت چلی گئی ہے، دوسری حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے عوام کے لیے مسائل بھی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ کافی بد نظمی ہے، ایئرپورٹ پہ سہولیات کا فقدان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، بیوروکریسی جو ہے یہاں پہ موجود اب اس طرح سے نہیں ہے، پرانی بیوروکریسی جا چکی ہے، نئی بیوروکریسی نئی حکومت کی تشکیل کے بعد ہی عمل میں آئے گی۔ تو یہ کافی جو ہے مشکلات ہیں، اور اب ہمیں امید ہے کہ افغان سائڈز، افغان طالبان اور دیگر افغان لیڈران مل کر اس پر غور کریں گے اور اس عمل کو تیز یا جلدی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کو مبارکباد بھی دی ہے، پھر ان کے کچھ لوگ چھوڑے بھی گئے ہیں، قیدی چھوٹے بھی ہیں، اور عام معافی کا اعلان بھی قیدیوں کے لیے افغان طالبان نے کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنے کنسرنز کنوے کیے ہیں طالبان کو؟ پاکستان یہ مستقل طور پر افغانستان کی گزشتہ حکومت کو بھی یہ کنسرنز کنوے کرتا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی جو سپیسز ہیں وہ ایسے گروپس نہ یوز کریں جو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کروائیں۔ یہ کنسرنز ہم نے طالبان کے ساتھ بھی بہت تواتر کے ساتھ شیئر کی ہیں، مستقل طور پر شیئر کرتے رہے ہیں، اور ہماری امید بھی یہی ہے کہ اگر ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک انکلوسیو گورنمنٹ یہاں پہ قائم ہوتی ہے تو طالبان نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے؟ ہمارے کنسرنز کے جواب میں کیا کہا ہے؟ طالبان نے ہمیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان کو جگہ نہیں، سیف ہیونز نہیں فراہم کریں گے۔ طالبان نے ہمیں ہمیشہ یہ ایشورنس دی ہے پاکستان کو کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی پاکستان کے خلاف کسی طرح استعمال نہیں کی جائے گی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے حکومت میں آتی ہے تو اس کا کنٹرول زیادہ ہوگا، اور نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ ای ٹی آئی ایم یا آئی یو ایم جیسے گروپس جو دوسرے ہمسایہ ممالک کے لیے یہاں پہ رہ کر نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ بہت شکریہ منصور خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ وقت ختم ہو گیا شو کا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔